Hello, good evening, good people. I hope you're all doing so well. Welcome back to my channel again. And Namaste, Assalamualaikum, Sat Sri Akal, greeting of the day. And today's vlog is most awaited and most interesting vlog because in today's vlog I will be introducing you to the aviation industry. That what is the aviation industry and what it deals to, and most I will cover the topic that how can you become an air hostess or a air steward. So in this vlog today I will be discussing about that what's the aviation is, what are the skills you needed into this, and what should be your qualification to enter the field, and what skills you need to be in this field, and what is the selection criteria, eligibility criteria, salary, and how to apply for the airlines, either it's domestic or international airlines. And I will also make you know about the institutes if you want to join a course for the aviation field, so you can. So without further delay, first of all, I will like to tell you that as I always say in my first vlogs, that I am from the aviation field. And if you see in my view that aviation is not only making, building and flying an aircraft, and when we enter the aircraft, it's the no feeling that can be described. Like for me, sky is my second home. So it's the very undescribable feeling. So first of all, I introduce you that what is aviation, कि एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन है क्या. Aviation industry is the business sector that manufactures, maintains and operates the aircrafts and the airports. When it comes to aviation, there is a broad range of responsibilities within. It comprises activities at the airport as well as aviation is the designing, building and flying of an aircraft. So, first of all, if we talk about skills, airlines and all about this. So first I will be introducing you that when we see an air hostess and air stewards with pilots on the airport field, so this is a world full of glamour. It's a total a glamour life. You have lots of sources to have a world tour. And what is the best in the life if you have a world tour in your life? So I know you are very excited all. So इंट्रोडक्शन मैं आपको एविएशन का दे चुकी हूँ, एंड अब हम बताएंगे कि व्हाट डज एन एयर होस्टेस डू इन अ फ्लाइट. एयर होस्टेस वर्ड यूज़ होता है फीमेल्स के लिए और एयर स्टीवर्ड वर्ड यूज़ होता है मेल्स के लिए. तो लोगों को ये लगता है कि बस ये लोग गर्ल्स मेकअप कर कर आती हैं और फ्लाइट्स पे अपने लगेजेस लेकर ऑन बोर्ड होती हैं और बस ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं और बस ये पैसेंजर्स की सेवा करते हैं, कि एक तरह से इनको सर्वेंट का नाम दिया जाता है, जो कि टोटली मिथ है. जितना आसान आप सामने लाइव में देखते हो, आप अपनी आइज़ से देखते हो, एयरपोर्ट्स पे हम ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं, बट उतना ही ट्विस्ट, उतना ही हार्डवर्क पर्दे के पीछे है. इसके लिए बहुत 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 हार्डवर्क करना पड़ता है. तो प्लीज़ इस मिथ को पहले तो दिमाग से निकालिए कि बस कि मेकअप करना होता है और फ्लाइट पे पैसेंजर्स का स्वागत करना होता है. ठीक है, ये एक ड्यूटी है, बट इसके लिए भी आपके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है. तो नाउ अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में
होता क्या क्या है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में, क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, अगर किसी को कोई प्लेन इमरजेंसी हो जाए, प्लेन में इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, पैसेंजर्स को वेलकम करना होता है, उनकी केयर टेकिंग करनी होती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू आए जैसे कि हार्ट अटैक और अस्थमा प्रॉब्लम, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी, लेबर पेन, डिलीवरी कराने तक की जिम्मेदारी एयर होस्टेस की होती है। प्लेन डिच हो जाए, इवैक्यूएशन हो जाए, टर्बुलेंस हो जाए तो पायलट की ओर से अनाउंसमेंट करना और बाकी सब मील्स टेक केयर करना, ये सब एयर होस्टेस का काम होता है, उनकी ड्यूटीज़ है। उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी, जो सबसे बड़ी और सबसे मेजर ड्यूटी क्या होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, तो ये होती है उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी, इससे पहले कुछ नहीं है। और बेकायदा एयर होस्टेसेस को, वो किसी भी एयरलाइन में हो, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, उन्हें बेकायदा वो एयरलाइंस अगर वो इंटरव्यू क्रैक कर लेती हैं तो उन्हें बेकायदा 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी फ़ीस 50,000 to 70,000 या 1 लाख के अक्रॉस होती है। एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, तो उसमें भी उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है, हर एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जिनके लिए उस ट्रेनिंग असेसमेंट में भी उनको हर मॉड्यूल्स में 90% स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फील्ड में जाने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि डोमेस्टिक की सैलरी कितनी होगी और इंटरनेशनल की सैलरी कितनी होगी। देखिए, पहले तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, आपने सब कुछ क्रैक कर लिया, ठीक है, बट अगर आप वहाँ जाके मेंटली, फिजिकली अपने आप को अडेप्टेबल ही नहीं बना पा रहे हो, उस ऑरा में मिक्स ही नहीं हो पा रहे हो, तो आप कैसे जॉब करोगे, कैसे आप दूसरी नेशनैलिटीज़ के साथ मीट करोगे। एंड आपके अंदर जो भी कमियां हैं, बहुत टाइम है, अभी 1-2 महीने में, बहुत टाइम भी नहीं कह सकते, इतना टाइम बीत गया है और अब धीरे धीरे हायरिंग भी होने शुरू हो गई है काफ़ी एयरलाइंस में, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल्स में भी। तो अपने आप को तैयार कीजिए जिस भी कमी में आप लैक करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि एक तो ये ग्लैमर वर्ल्ड है और इसमें एंटर करने के लिए सिर्फ जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सिर्फ 12th पास। हाँ, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो बहुत अच्छा है, और इस फील्ड में कोई भी आपकी रिटायरमेंट नहीं है। हाँ, एक लिमिट है एज की जो कि फ्लाई की दी गई है, वो है 52 to 55 की एज तक, और हर महीने आपके मेडिकल चेकअप्स किए जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री के कंपनी के थ्रू, हर महीने कि मतलब आप सीधा सा सिंपल मतलब समझो कि आप फिट हो तो आप हिट हो। ठीक है, तो आप 52 ईयर्स तक मैक्सिमम, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो वो फ्लाइंग में चाहे एक ही एयरलाइंस में जॉब कर सकते हैं। अगर वो एयरलाइन चेंज करना चाहें तो अपनी कंपनी से डिस्कस करके उनको रीज़न बता के एयरलाइन अगली स्विच कर सकते हैं। जैसे मानो कि आपने अभी डोमेस्टिक में दिया, आपने उसमें अपने 2 to 3 ईयर्स दिए, तो आपको लगा कि अब मुझे इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल अगर आपको स्विच करने का मन है तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको फुली प्रिपेयर होना पड़ता है। और किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उस एयरलाइंस के बारे में पढ़ें, अच्छे से सर्च करें, क्योंकि वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्किल्स एक एयर होस्टेस में होने चाहिए या एक एयर स्टीवर्ड में होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए बहुत अच्छे, और आपकी जो क्लैरिफिकेशन है वॉइस की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो है आपकी जो क्लियर स्पीच होनी चाहिए और आपकी वॉइस, ताकि जब आप बात करें तो वो दूसरे को भी समझ आए। ठीक है, तो और उसके बाद आपकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपको ज़रूरी आनी चाहिए। और हाँ, अगर इसके सिवाय आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज आती है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लाइक उर्दू, अरबी, हिंदी, उर्दू, अरबी, कोई भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो उसका आपको अलग से बेनिफिट मिलता है, तो इट्स ऑप्शनल। बट हिंदी और इंग्लिश आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। दोनों लैंग्वेजेस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। वो आपका दोनों टेस्ट लेते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी इज़ मस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपका जो स्किल्स में देखा गया, क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। मान लीजिए ऑन बोर्ड किसी की आपको डिलीवरी करवानी पड़ जाए, तो आप में क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद पैनिक हो जाओ, खुद रोने लग जाओ। तो इसीलिए
ये बहुत एक आप में होना चाहिए कि बी फिजिकली इमोशनली मेंटली फिट, ठीक है। और इसमें है कि एक और बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल फिट एंड हेल्दी पर्सन होने चाहिए। आप कोई मेडिकेशंस ना ले रहे हो। अगर आप कोई जनरल मेडिसिन ले रहे हो तो इट्स ओके, जैसे हेडेक की है, बॉडी एक की है, तो ऐसी मेडिसिन, बट आपको कोई मेजर डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मैं बात करूँ तो इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो करीब 90 केजी के कार्ट को आप पुल कर सको, खींच सको, उतनी होनी चाहिए। कार्ट होता है जिसमें पैसेंजर्स को खाना सर्व करते हैं हम, ठीक है। तो और आपको स्विमिंग भी इस फील्ड के लिए आनी चाहिए। तो डोंट वरी, अगर आप पहले ही स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। कहीं भी अपने क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स, तो उनमें स्विमिंग सिखाई जाती है, जो कि पर उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास कि आपने इसके लिए स्विमिंग सीखी है। तो डोंट वरी, अगर आप नहीं भी सीख कर जाते हो पहले, तो आपको वो खुद सिखाएंगे। जिस भी एयरलाइंस में आप सिलेक्ट होते हैं वो आपको स्विमिंग भी ज़रूर सिखाते हैं, ठीक है। तो और आपकी जो मेंटल हेल्थ में जो आपकी ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रूमिंग नहीं आती है तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ है, प्लीज़ उस पर जाएँ, रिसर्च करें, देखें, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो एक बार आप किसी सैलून में जाके अच्छे से थोड़ा गाइडेंस लें, ठीक है। और आइज़ जो है आपकी वो आपकी 6/6 विजन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका आइज़ टेस्ट भी होता है मेडिकल में। और इस फील्ड एविएशन के लिए अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहें, डिग्री करने चाहें या सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ करना चाहें तो वो ज़रूर अवेलेबल है। कॉलेज टू कॉलेज इनकी फ़ीस डिपेंड करती है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, तो आप मानो सब क्लियर कर गए। अब बात करते हैं हम कि वेट और बीएमआई की। जो आपका वेट है वो आपको बीएमआई के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मतलब मैचिंग होना चाहिए। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, कि जितनी आपकी हाइट है, जितना आपका वेट है, तो वो बीएमआई प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आप ओबीज हो, मतलब आपका वेट, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो उनका जो बीएमआई होता है वो 18 to 20 के बीच में होता है, ठीक है। और जो मेल का बीएमआई होता है वो 18 to 25 के बीच में होता है, ठीक है। और जो फीमेल्स की हाइट होती है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल्स की हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आपका इंटरनेशनल एयरलाइंस में तो आप खासकर देखेंगे, इंटरनेशनल एयरलाइंस में क्या होता है, 212 सेंटीमीटर आर्म रेस्ट टेस्ट होता है। ऐसे करके आपको टिप टॉप पे खड़े होकर ऐसे एक वॉल पे उन्होंने मार्क लगाया होता है 212 सेंटीमीटर का, टिप टोज पे गर्ल्स को अपनी हील्स उतार कर वो टेस्ट करना होता है। वो एक आर्म रेस्ट टेस्ट होता है जिससे आपकी हाइट इसलिए चेक की जाती है कि जो हमारी सीट्स के ऊपर ओवरहेड बिन्स होते हैं जिसमें हम अपने बैगेज रखते हैं, तो वो उसको आप लॉक कर सकते हैं, उसको आप सिक्योर कर सकते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो इसलिए होता है। और जो फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल्स की हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मैंने बीएमआई बताया, फीमेल्स का 18 to 20 के बीच होना चाहिए और मेल का होना चाहिए 18 to 25, ठीक है। तो अब है जैसे कि अब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे आप। मान लीजिए ये एयरलाइंस हैं जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज। इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जैसे एमिरेट्स, एतिहाद, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक एट्सेट्रा। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करें, किसी भी फेक naukri.com, linkedin.com, shine.com मत करें, ये सब फ्रॉड होता है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हमें फंसा लेती हैं, बहुत सारा पैसा हड़पती हैं, किसी से 20,000, 50,000, 30,000 की आप पैसे दीजिए, हम आपको नौकरी लगवा देंगे डायरेक्ट। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में शेयर करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, जिस भी एयरलाइंस के लिए आप तैयारी करिए। और पहले ही ये गोल रख के चलिए कि आपको इंटरनेशनल के लिए तैयारी करनी है या डोमेस्टिक एयरलाइन से आपको शुरुआत करनी है या फिर आपको एक ग्राउंड स्टाफ से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो अब बात की जाए कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है, इनका अप्लाई प्रोसेस क्या है।
तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। जैसे कि मान लो आपको एयर इंडिया के पेज पर जाके अप्लाई करना है या इंडिगो पे जाके अप्लाई करना है, तो आपको indigo.careers पेज आप टाइप करें गूगल पे, क्रोम पर जाकर, तो आपको वो उसका ऑफिशियल पूरा पेज खोल देगा। तो आपको कुछ फॉर्म्स होंगे वहाँ पे, मतलब आपको ऑनलाइन ही सबमिशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको 10 से 12 दिन में आपने अप्लाई किया तो आपको आपके जो करंट नंबर आपने दिया है, ईमेल दी होगी, आपने फिलअप किया होगा, आपको एक मेल आएगी आपके फ़ोन पर। तो उसके बाद आपका क्या शुरू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट डे में आपके 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। डे 1 4 राउंड्स में होते हैं, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें आपको अपना CV लेकर जाना होता है, ठीक है, जिसके बेस पे आपका ये सिलेक्ट होता है कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। CV इज़ मस्ट फॉर द फर्स्ट राउंड। देन इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन आपने की है तो उसकी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और आपकी अदर कोई अचीवमेंट्स हैं नेशनल्स पे या स्टेट पे तो उसकी सर्टिफिकेट्स, अगर आप कहीं आपने जॉब किए तो उसके ओरिजिनल कॉपीज़ सब किन के लेकर जानी है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और फुल लेंथ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फुल लेंथ फ़ोटो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल, वाइट बैकग्राउंड, पूरे फॉर्मल्स में आपको तैयार होना है, ठीक है। तो और आपकी ग्रूमिंग इसमें बिल्कुल सिंपल, जितनी सिंपल होगी उतनी अच्छी रहेगी। हाँ, अगर आपको कोई नेचुरल स्कार है या बर्थ मार्क है तो आप उसे कंसील करके जाइए, फॉर गर्ल्स और बॉयज़ बोथ, ठीक है। तो और ज़्यादा मेकअप मत कीजिए, वरना वो ओवर मेकअप वो पहचान लेते हैं क्योंकि आपका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपका ये होता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। अब आता है, अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, आपका CV शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, या जिसे हम रिज्यूमे बोलते हैं, CV बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड राउंड में आ जाते हैं तो उसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है, इंग्लिश हिंदी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका थर्ड राउंड। उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके टीथ चेक होते हैं, आपकी विजन चेक होती है, आपका ईयर टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट लिया जाता है, आपका हाइजीन टेस्ट होता है, ठीक है। फिर फोर्थ होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको HR से पर्सनल इंटरव्यू करना होता है, ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग टू एयरलाइंस एंड हु ऑपरेटेड्स, मतलब थोड़ी सी आपकी वो, मतलब आपकी स्किल्स एंड टेस्ट करते हैं वो आपको, ठीक है, कि आप ऐसे ही आगे इंटरव्यू के लिए, या आप कुछ रिसर्च कर भी आए हो, या आप ऑनेस्टली इस फील्ड के लिए आपके स्किल सेट मैच करते हैं या नहीं। उसके बाद आपका GD राउंड होता है, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, GD राउंड होता है उसका। फिर उसके बाद आपको GD राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। उसमें क्या होता है, आपको 16 स्टूडेंट्स हैं या 15 हैं, तो आपको मान लो 16 स्टूडेंट्स हैं तो आपको 8 के बैच में डिवाइड किया जाएगा और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी, लाइक कोविड दे दिया या कोई भी टॉपिक, और आपको उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ फ्रेम करके आप सबको ग्रुप डिस्कशन, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करके उस पर बोलना होता है। वो आपके स्किल्स चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और प्लीज़ ये अपना हेजिटेशन निकाल दें जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका टेस्ट एक होता है मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, जिसमें आप मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सर्विस related questions will be asked from you in this test, and if you cleared this test, then you came to the third day. Congratulations guys, you came to the third and final day, that is the medical test day. इसमें आपका पूरी बॉडी का मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। इसमें टोटल अराउंड 12 to 14 टेस्ट होते हैं जो कि आपके होते हैं। आप चाहे तो वहीं से भी करवा सकते हैं टेस्ट, ठीक है, जहां आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जा रहे हैं या किसी डोमेस्टिक के लिए भी जा रहे हैं तो मोस्टली इंटरव्यूज़ आपने देखा होगा न्यू दिल्ली या गुड़गांव में या नोएडा में ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ही हैं। तो मोस्टली इंटरव्यूज़ वहीं कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर आप सभी मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो फिर
आपको ये सेंड कर देते हैं फॉर ट्रेनिंग। कंग्रेचुलेशंस गाइस, नाउ यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एयरलाइंस। तो ये होते हैं, ये है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। पहले तो आप ये देखिए कि भी मतलब कि आप किस स्किल में मतलब लैग कर रहे हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करें। और प्लीज़ अपना सीवी खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें। अभी बहुत टाइम है, अभी आपके पास 1-1.5 महीना जो भी है, क्योंकि अभी हायरिंग शुरू हो गई हैं। तो अपने आप को एकदम वो करें। और मैं ये गर्ल्स को ज़रूर टिप दूंगी कि रोज़ रोज़ मेकअप ना करें, बस अपना स्किन के रूटीन अच्छा रखें। आपके मतलब वहाँ पे हर चीज़ टेस्ट होती है, आपका जेस्चर, पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू स्पीक, और आपकी जो मतलब कैसे आप मतलब देखते हो। और कभी भी इंटरव्यू देते हुए डोंट बी हेजिटेट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर विद योर शोल्डर्स ब्रॉड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये एक टिप याद ज़रूर रखना। एंड आपको कुछ भी ना आता हो तो हाँ, डोंट सी अराउंड द वॉल्स। जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे हैं एक स्माइल दीजिए, आते वक्त भी जाते वक्त भी। हाँ, अगर आप अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये आपका दोष है। हम गिरते हैं, हम उठते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, रिजेक्शंस हर फील्ड में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो, और एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जैसे मान लो कि कल आपका इंटरव्यू है, तो आप प्लीज़ रात को प्रॉपर नींद लीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ। और अगर आपको डर लग रहा है तो आप हमेशा एक मंत्र याद रखना, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन। अपनी आइज़ क्लोज करके 5 टाइम्स ये मंत्र बोलना, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन। और हाँ, मैं अगले वीडियो में मिलूँगी आपके साथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और इसमें आपकी जो सैलरी होती है, मैं आपको ये बताना भूल गई, सॉरी। आपकी जो सैलरी होती है ये 40 to 50,000 के बीच में स्टार्ट होती है। अगर आप किसी डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करते हैं या उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो इंटरनेशनल एयरवेज़ हैं उनका लाइक आपको 60 to 80,000 के बीच में स्टार्टिंग मिलती है। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं वैसे वैसे सैलरी आपकी अराउंड 2 लाख 50,000 के करीब हो जाती है। तो आई विश ऑल द बेस्ट to all who are planning to going in this field. So always be confident and live your life to the fullest. Thank you, bye bye. I'm ending this vlog. If you like please share, comment and subscribe my channel Nana Kumari. Thank you, bye bye.